Yeah, friends, now we are starting. There was some little issue with the internet. Now it is solved. I think you can hear me. You can hear my voice. Yes. Yes, yes. Yes, thank you. Okay. So now the subject of today is position sizing. So generally, what happens? There are many traits that you can find कि आपको लगता है कि ये ट्रेड्स आपने लेना चाहिए. There may be 5, 6 traits. Even our research team gives more than 5, 6, 7, 8 traits. Now, how are you going to take all the shares with the understanding that under any circumstances you are going to make money. The logic is that you should be able to make money. Okay, so just a minute. The research team gives around 6, 7 traits. Even today also, our research team has given around 6 and how many traits were given by our research team, madam? The question is, logic is this, out of the so many traits, which are the traits you should be taking basically? That is one question. Forget about this service. It doesn't mean that the logic that I am going to teach you today is going to be useful whether you study the shares on your own and find the shares which are according to can give you profit. Okay. So now the simple, very simple logic is that it's not a very big issue. Now simple rule is this. If you are an investor, basically, before this, I would like to say something here. Tradable capital is the capital which you don't need for anything. Suppose you are having some money, say you are having 1 lakh rupees, and after 3 months or 4 months, you need that 1 lakh rupees for education purpose of your children. So that amount is not to be put in the share market. Suppose you are having some money, which is, in case of any emergency, say hospitalization or whatever, there may be n number of emergencies, and you have kept some 50,000 in your home or in a saving account. That amount is not to be used for the trading. So the amount which is to be used in the trading is only that amount which you don't need at all currently. So you are trading for the fun. Listen, that is the number one. Now, if that amount is tradable amount, tradable capital, so it is this tradable capital 25,000. If somebody has tradable capital 50,000, one can have 50,000. Okay, then these are the calculations will be there. That I am going to tell you. Okay. Another thing, the very important thing is this, that some brokers give 10 times margin. Some brokers give 10 times more margin. Some people give 5 times margin. But ideally, I do not believe in using the margin. If at all you want to use it, ideally you should use double the amount. That's all. तो अगर आपके पास 50 है तो डबल मतलब यहाँ 2 लिखेंगे. ये सब ऑटोमेटिक बना है सब. सो यू शुड बी मैक्सिमम मेरे पास 1 लाख रुपया है ऐसा सोच के आपको ट्रेड करना है. ओके. और आइडियली मैं कहता हूँ अगर इन्वेस्टमेंट में करना है जिसको आपको लगता है कि ये कल के लिए भी रख सकता हूँ, 1 वीक के लिए भी रख सकता हूँ, पोजीशन के लिए भी रख सकता हूँ, इंट्राडे में मेरे को ट्रेड नहीं करना है, तो मार्जिन अवेलेबल समझो ओनली 1, so that 50,000 is just 50,000 for you. So I hope that you are understanding this. Okay, any question here? Similarly, make habit of withdrawing some percentage of your profit. अगर आप 50,000 में अगर 4 दिन में या 10 दिन में या 1 महीने में समझ लो, ये 50,000 के आपको 20,000 प्रॉफिट हो गया या 10,000 प्रॉफिट हो गया, that is not material how much profit is there.
but some portion of that you must keep aside and withdraw it and keep in your saving account. So that इसको बढ़ाओ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि 1 लाख कमाया इसके लिए इसका भी 1.5 लाख कर दूं, पूरा का पूरा ट्रेडिंग में डाल दूं, फिर 1.5 लाख का 3 लाख हो गया, फिर वो पूरा का पूरा मैं इसमें डाल दूं, ट्रेडिंग में डाल दूं. डे विल कम 50,000 के 3 लाख कमाया, लेकिन 3 लाख का फिर 50,000 हो जाएगा. I remember one person, one of my very good friend, Mr. Jovan Putra is there. He is a chartered accountant. He told me a story of his friend. So he had earned कुछ 5 लाख का उसने 15 लाख किया था. I don't remember the figures. Figures are not important. और नहीं, बड़ी अमाउंट थी, 50 लाख किया था उसने, उन्हें उसको 10 लाख या 20 लाख का 50 लाख हो गया था, तो 30 लाख का प्रॉफिट हो गया था. तो जोबन पुत्र ने उनको कह दिया, आपका टोटली तो 10 लाख था ना, या 20 लाख था ना, अभी तो 50 लाख हो गया, बाकी पैसा आप फिक्स्ड डिपॉजिट में डालो, ये 20 लाख रुपया आप शेयर मार्केट में डालो. बट उन्होंने बड़े इसके साथ, बड़े क्या बोलते उसको, गर्मी के साथ, अहंकार के साथ वो बोला, अरे ये 20 लाख का 50 लाख किया तो केवल अभी 50 लाख नहीं, इसको अभी मेरे को 1.5 करोड़ करना है, फिर 2 करोड़ करना है. आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट अवे. बट देन मिस्टर जोबन पुत्रा टोल्ड मी दैट वो ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, से ही नोस हिज इनकम टैक्स. वो जो आ गया तो बोले कि दैट 20 lakhs had become only 10 lakhs. सो वो जो 50 लाख का सीधा 40 लाख का लॉस हो गया था. सो मेक द हैबिट ऑफ विड्रॉइंग सम मनी, पूरा का पूरा डालते जाना, इधर डालते जाना. आवर वन स्टूडेंट इज देयर, मिस्टर प्रभु, यू मस्ट बी नोइंग हिज नेम. प्रभु हैज अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ विड्रॉइंग द मनी. He withdraws the money and puts some money in the saving account or whatever. I don't, I mean, वो डिटेल्स में मेरे को मालूम नहीं, बट पूरा का पूरा वही का पैसा उधर ही डालने का, उसके ऊपर पूरा का पूरा फिर से शेयर मार्केट में डालने का, फिर कमाया हुआ फिर शेयर मार्केट में डालना. He doesn't do this. So I hope that you are understanding this point. Number 1, आपका ट्रेडेबल कैपिटल, ये कुछ जरूरत है स्कूल का या किधर पिकनिक जाना है, यू हैव डिसाइडेड, या फिर शादी करना है, दैट मनी शुड नॉट पुट इन द शेयर मार्केट. और ब्रोकर 10 टाइम्स देंगे. व्हाई वो 10 टाइम्स क्यों देते हैं? क्योंकि द ब्रोकर्स वांट एंड इवन द गवर्नमेंट वांट्स दैट यू शुड डू एज मेनी ट्रेड्स एज पॉसिबल, बिकॉज द रियल अर्निंग मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सच्चा पैसा मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसके बाद में मिलता है ब्रोकर को. ये दोनों कभी भी लूजर्स नहीं है. लूजर्स कौन रहते हैं? लूजर्स रहते हैं नॉर्मल पीपल. तो ये 10 टाइम्स की बात छोड़ो, मैक्सिमम 5 टाइम्स. इफ यू आर वेरी शार्प, यू नो दैट यू अंडरस्टूड, तो आप 5 टाइम्स कर सकते हो. यहाँ अगर जैसे ही 5 टाइम्स कर दिया तो आपका 2.5 लाख का ट्रेड आप डेली कर सकते हो. ये जो 5 टाइम्स इंट्राडे के लिए होता है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, दिस इज नॉट फॉर द पोजीशन, दिस इज फॉर इंट्राडे. ठीक है, बट आई विल नॉट एडवाइज टू गो फॉर 5 टाइम्स ऑल्सो. 2 टाइम्स आप जरूर कर सकते हो. तो 50,000 है तो 1 लाख मेरे पास है इंट्राडे के लिए, तो आप कर सकते हो, ये विड्रॉ कर सकते हो. नंबर ऑफ ट्रेड्स, जनरली वी गिव 5, 6, 7, 8 ट्रेड्स हम करते हैं. तो आइडियली यू शुड टेक 4 और 5. यहाँ अगर मैंने 5 कर दिया, दिन में मैंने 5 ट्रेड्स लिया, तो ये 1 लाख विल बी डिवाइडेड इनटू 5. ये सब फार्मूले ऑलरेडी दिए हैं. सो योर परमिसिबल इन्वेस्टमेंट इन 1 शेयर, इफ यू आर टेकिंग 5, okay, if you are taking 5 trades, then एक ट्रेड में परमिसिबल ये 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 is 20,000. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. सिंपल लॉजिक. या ठीक है, वेरी सिंपल लॉजिक. अभी यहाँ अशोक लेलैंड की बात करता हूँ. अशोक लेलैंड गया 5.68%, बहुत ऊपर गया. अशोक लेलैंड पर हम बहुत बार बात कर रहे हैं. से फॉर एग्जाम्पल, आई हैव
ये कितने बजे का टाइमिंग है? ये 1:30 बजे का टाइमिंग है। ओके, ये पुश एरिया है अपना। मेरे ख्याल से मैक्सिमम पीपल हैव स्टडीड द कॉन्ट्रेरियन थ्योरी। आई होप यू स्टडीड द कॉन्ट्रेरियन थ्योरी। अगर किसी ने स्टडी नहीं किया हो तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप स्टडी कर सकते हो। अभी समझ लो आई हैव डिसाइडेड कि यहाँ आने के बाद मेरे को फिर से एक बार सेल करना है। ओके, you can call this as a pullback. This is the first real fall, and this is the first touch. Okay, and definitely this will be your stop loss, isn't it? This will be your stop loss. I hope you people are knowing what exactly is contrarian theory. And suppose I have decided that when it will go to 48.77 and when it will fall from there, I will sell the Ashok Leyland. Okay, तो 48.77 लिखा है, हम 48.80 लेते हैं। तो आप इधर क्या करोगे? इधर लिखोगे आपका सेल करेगा रहेगा 48 पॉइंट कितना है? 80 था क्या? How much I told? 48.8. हो सर 48.8 आपने यहाँ लिख दिया 80 और मेरा अब ये मैं सेल कर रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा। स्टॉप लॉस कितना मैंने लिया है यहाँ पर? यहाँ स्टॉप लॉस लिया 49.10 लग 49.15 करते, चलो 49.15। ओके, सो मेरा लॉस पर शेयर इज 35 पैसा। परसेंटेज ऑफ स्टॉप लॉस इज 72 पैसा। ठीक है, तो किसी भी हालत में अभी ये मैं यहाँ सेल नहीं कर रहा हूं, मैं बाय नहीं कर रहा हूं, इसको मैं छोड़ देता हूं। ठीक है, इसको मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं बाय नहीं कर रहा हूं, मैं सेल कर रहा हूं। सो इट शुड नेवर बी अबाउ 1%, मैक्स अबाउट 2%। मैक्स सर से पानी निकल गया, अगर 2% के ऊपर है तो वो ट्रेड आपको लेना ही नहीं किसी भी हालत में। यू शुड नॉट टेक द ट्रेड। ये ट्रेड फिट नहीं है क्योंकि 2.21 इसका स्टॉप लॉस है। इट हैज टू बी नॉट मोर देन 2% मैक्स। आइडियली इट शुड बी अराउंड 1%। अब एग्जैक्टली 1% नहीं रहेगा, एक 1.2 रहेगा, 1.3 रह सकता है, 1.10 रह सकता है, दैट इज ओके। लेस देन 1 भी रह सकता है। आइडियली दिस इज वेरी गुड। ओके, नाउ हाउ मेनी शेयर्स यू कैन बाय? You can buy shares 409. Everything is mentioned here. Automatically you will come to know. Never go beyond 1%. At least, I mean, maximum 2%. Okay. So what will happen if the 5 trades are taken with the stop loss of 1? So max 5% will go. मैंने यहाँ 8 का एग्जाम्पल देके रखा है, 9 का देके रखा है, समझेगा? बट मैक्सिमम अगर आपने किया 5 ट्रेड्स, अभी यहाँ मैंने 5 लिए तो 5, तो ज्यादा 5% जाएगा। अब लिसन 5% ऑफ व्हाट अमाउंट? 5% ऑफ दिस 1 lakh. You are understanding? Because this is the margin that you have used. In the 5 trades, you have used 20,000, 20,000, 20,000. And based on this permissible investment, you are putting the number of shares. I hope you are understanding nicely. अब ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट इसका प्राइस है 1245. So definitely यहाँ पर आपको 16 क्वांटिटी मिलेगा। अब सवाल कैसे आएगा? सवाल ये आएगा कि मेरे को फ्यूचर में करना है तो क्या करूंगा? क्योंकि फ्यूचर्स में आपको तो लॉट लेनी है ना? ये लॉट लेना पड़ेगा ना। तो जैसे कि एग्जांपल हमने इसका ये एग्जांपल ले रहे, इसका लॉट है अशोक लेलैंड का। अशोक लेलैंड का हम लॉट देखते हैं।
अशोक लेलैंड का है 8,000। ओके, इसका लॉट है 8,000। सो यू विल हैव टू टेक 8,000। आपको शेयर तो 8,000 लेने पड़ेंगे ना। तो परमिसिबल 8,000 पर 0.72 के हिसाब से अगर करोगे तो ये परमिसेबल इन्वेस्टमेंट में बैठ सकता है। या हमने 5 लिए ना, समझ लो मैं इसको नंबर ऑफ ट्रेड्स एक ही लेता हूं, तो ये पूरा का पूरा 1 लाख यहाँ यूज कर सकते हो। लेकिन देखो 1% को बोलो तो 8,000 जाएगा ना। 1% का लॉस है तो 8,000 जाएगा, तो 0.72% का जाएगा तो कम से कम 6,000 जाएगा। यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? सो ऐसे केस में आपको ये मार्जिन बढ़ जाएगा आपका। ये मार्जिन बढ़ जाएगा, मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा आपको, और ये नंबर ऑफ ट्रेड्स कम रखना पड़ेगा। या फिर ये कैपिटल है, ये अगर मेरे पास 1 लाख है, ये मेरे पास 1 लाख है, तो मुझे कुछ इश्यू नहीं है, मैं एक ट्रेड ले सकता हूं, ये फ्यूचर्स का ट्रेड ले सकता हूं। अब यहां पर आपको मार्जिन 2 लाख है, किसी के पास 5 लाख है, ठीक है, और ये 5 टाइम्स मैं मार्जिन ले रहा हूं, और नंबर ऑफ ट्रेड्स 2 ले रहा हूं, तो आई कैन टेक 5,000 का नंबर ऑफ शेयर्स ये कर सकता हूं यहाँ पर। सो ये एक बार समझ लो आप अच्छे तरह से कैसे रहेगा ये। बट बेसिकली दिस इज मनी मैनेजमेंट। फ्यूचर्स में आपको ट्रेड करना है तो यू शुड हैव ये मनी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा आपके ध्यान में आना चाहिए। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो ये देखो, ये जो स्टॉप लॉस है उस पर कंट्रोल रखना है, ये क्वांटिटी पर ध्यान रखना है। अगर आपको फ्यूचर्स में जाना है तो आपको ये देखना है कि भाई मेरे परमिसिबल जो मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है, वो ये मैच होता है कि नहीं। तो यू हैव टू टेक लेस नंबर ऑफ ट्रेड्स। इफ यू वांट टू टेक मोर ट्रेड्स देन बेटर यू टेक द इक्विटी में जाइए, ठीक है, इंट्राडे में 2308 इज बाइंग प्राइस मेरी 2308, ओके, और मेरा स्टॉप लॉस कितना है 2282। सो इसको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये है ना, ये हाँ, ये थोड़ा सा ये एक्चुअली लो है ना 2271, ओके, और इसका स्टॉप लॉस है 2271। You understood? Okay, the loss per share is 37. ये सेल का है, इसके लिए ऊपर किया था, ये बाय का है, इसके लिए मैंने इसको नीचे किया। ओके, you got now? तो the stop loss is 1.60. Is it okay? It is okay. It is less than 2%. इट इज ओके, इतना ये नहीं कर सकते। अभी इसका लॉट क्या है, विल स्टडी द लॉट आल्सो। इसका लॉट है बजाज का लॉट है F1 250। सो 250 लॉट है, सो यहाँ 189 का होता है, ठीक है। अभी अगर फ्यूचर करना है तो यू हैव टू राइट डाउन टू 250 होगा क्या, ये आपका
ये जो है ये स्टॉप लॉस थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर मैंने क्वांटिटी चेंज किया, बढ़ाया, तो स्टॉप लॉस 10 रुपए से अगर 10 नहीं 60 रुपए से करना है मेरे को। 250 नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब 60 रुपए से बढ़ाना है, तो नेचुरली आई विल हैव टू stop loss will have to be lesser stop loss. yes, my की जगह stop loss, ऊपर yes, आप मेरा छोटा। तो व्हाट आई विल डू इन, मैं हैफेजार्ड मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ये मनी मैनेजमेंट रूल्स जो है वो पक्के ध्यान में रखूंगा और इसी के बेसिस पर ट्रेड करूंगा। अब ये जो है ठीक है, मेरे को यार ज्यादा ट्रेड करना है, चलो मैं इसको 10 वाला जीरोदा देता है ना, शेर खान भी कभी कभी 10 टाइम्स देता है, चलो यार यूज करते हैं इसका। बट आई एम टेलिंग यू, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। डू यू अंडरस्टैंड? आप जब 10 टाइम्स में मार्जिन अवेलेबल करते हो और 5 ट्रेड्स में 2% आपका लॉस होता है, तो 10% लॉस होता है। वो 10% लॉस है ने, इसका 10% है, द एंटायर कैपिटल विल गो। आर यू अंडरस्टैंडिंग why the people are losing money in the trading? This is the reason, the entire capital will go. फ्यूचर्स में इतना ये नहीं करने का। मार्जिन तो मैक्स 5% लो। आई विल एडवाइज 2% लो, नए लोगों ने तो 2% ही लेना चाहिए। ये नहीं जमता है तो इसमें जाओ, इक्विटी में जाओ, नो इशू, गो इन इक्विटी। कंपल्सरी एक आधा ट्रेड फ्यूचर्स में करो, एक आधा ट्रेड इक्विटी में करो, डजेंट मैटर। आई होप यू आर। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने लोगे यहां से देखोगे आप। मुझे इक्विटी में लेना है तो मेरा मार्जिन 1% है, तो मैं 1,75,000 है, तो मेरे पास 1,75,000 के हिसाब से मेरे को ट्रेड लेने हैं। अगर मेरे को 5 ट्रेड्स लेने हैं तो मुझे हर ट्रेड में इतना ही पैसा डालना है। मुझे 8 ट्रेड्स लेने पूरे के पूरे, तो मेरे हर ट्रेड में इतना ही पैसा डालना है। सो यू अंडरस्टूड दिस। कैपिटल के लिए तो पूरे के पूरे ट्रेड्स जाने के बाद भी ये 25,000 में से केवल उस दिन आप 2,000 का लॉस होगा। 50,000 में पूरे के पूरे ट्रेड्स फेल हो गए आपके। मैक्स लॉस इफ ऑल ट्रेड्स फेल। और ये दोस्तों, ये पूरे के पूरे ट्रेड्स कभी भी फेल नहीं होंगे। हमारा जो अनुभव है आज, हमारे 4 दिन का ये जो हमने, मेरा पुराना तो बहुत अच्छा अनुभव है। मैंने जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इवन मार्च के भी ट्रेड्स मेरे बहुत अच्छे रहे, लेकिन मैंने वो लिखा नहीं। वो सब ट्रेड्स मैं आपको दे सकता हूँ जो ऑलरेडी हमने बनाया है। देखो, अनसक्सेसफुल ट्रेड्स 14 थे, सक्सेसफुल ट्रेड्स 63 थे। लेकिन एक आधा दिन ऐसा निकलता है ना, देखो ये 24 जनवरी में मैंने 3 ट्रेड्स दिए थे। इन्फोसिस में 1,300 का लॉस, फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं मैं। टाटा मोटर्स में 8,000 का लॉस, बायकॉन में 1,840 का लॉस। तो ऐसा कभी कभी दिन निकल जाता है। तो ये देखो, कोई बार बार मैं कहता हूँ, कोई इसमें कोई गारंटी नहीं दे सकता है, मैं भी गारंटी नहीं देता हूँ। लेकिन अगर सबके सब ट्रेड लिए होते तो आपको, और जब तक मैं बोलता हूँ इसको क्लोज करो, तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था। इफ यू आर टेकन ऑल द ट्रेड्स। अभी हमारे एक स्टूडेंट है, ही इज फ्रॉम पुणे। व्हाट आई हैव सीन कि दैट वो प्रॉफिट जब निकल होता है ना, तो प्रॉफिट में 1,000 रुपए के प्रॉफिट में वो क्लोज कर देते हैं, और जब लॉस होता है तो 4-4 हजार का लॉस में खड़े रहते हैं। अभी मेरा और मेरे टीम जो है, मेरी टीम का भी है। अब कैसा रहता है देखो, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट मिलेगा ऐसा भी नहीं होता है। आई एम टेलिंग यू, टाटा स्टील मैंने बोला कि बाय फॉर स्विंग, ठीक है, बट इंट्राडे के लिए आप लिमिट को रोको ऐसा बोला।
उसके बाद में JSW को भी वैसे ही बोला स्विंग के लिए 197 में बाय करो, उसको वहां आने के बाद बाय करो, लेकिन बाद में मेरे को JSW में लगा कि यार इट इज द टाइम टू बाय, तो 198.5 में मैंने बाय बोल दिया। अब वो 1.5% ऊपर गया 9 बज के कितने मिनट में, एक 5 मिनट में शायद 9:45 टू 10 बज के 20 मिनट में मैं वो 1.5% ऊपर हो गया। ठीक है, तो मैंने शायद ये उसके बाद में 2% हो गया। ठीक है, ये फिर 2% ऊपर गया। आई होप दैट यूर, उसके बाद में शायद मैंने लिखा होगा कि भाई यू इसको क्लोज कर डालो, अभी 2% हो गया ना, इसको क्लोज कर दो। और कई बार मैंने ये कहा है, कि 1% के ऊपर चला जाता है तो आप क्लोज कर डालो, एटलीस्ट स्टॉप लॉस ऊपर कर डालो। 1% हो गया तो फिर केवल 50 नए पैसा का लॉस हो सकता है वहां से, उस प्राइस से। ऐसा स्टॉप लॉस ऊपर कर डालो तो होगा क्या, कम से कम 50 पैसा मिलेगा। फिर 1.5% हो गया, फिर ज्यादा से ज्यादा 50 पैसे लॉस होगा। इस तरह से स्टॉप लॉस ऊपर करो, मतलब लॉस हो गए तो प्रॉफिट में लॉस की बात कर रहा हूँ। 2% हो गया, फिर उसी तरह से इसको ट्रेल करते जाओ। अब हम देखेंगे JSW स्टील और टाटा स्टील भी देखेंगे, एंड देन सम ऑफ द ट्रेड्स गिवन बाय शिल्पा मैडम एंड प्रभु सर, वो भी हम देखेंगे। अच्छा, ये मेरे प्राइसेस रहते हैं इक्विटी में, क्योंकि इक्विटी में इसलिए मैं दिए रहते हैं क्योंकि मेरे को ये जब यहाँ ये मैं वर्क करते रहता हूँ। सी देखो, समवेयर ईयर 12 बजे तक, यहाँ तक 201 पर गया, समवेयर 10 बज के यहाँ पर मैंने बोल दिया 2% हो गया। तो देखो, अगर वो वहां नहीं लिया प्रॉफिट, ये अपने को दिखने को बहुत अच्छा दिखता है, और ये माइंड इतना खतरनाक काम करता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर। सो आई होप दैट पोजीशन साइजिंग, you understood this position sizing. So how many shares to be taken, it is here, and how it is to be position sizing is to be done, it is here. Okay, margin allowed 5 times यहाँ पर लिखा है। if इंट्राडे के लिए अगर ट्रेडिंग करते हो तो ओके, ऑलवेज इधर ध्यान देना, it should never be more than 2%। कि कंसिस्टेंटली आपको अगर पैसा मिलता है, ये 10% भी महीने को मिलता है, 20% भी महीने को मिलता है, मैं कहता हूं 5% भी मिलता है, इस मेथड से अगर आप करोगे तो 5% भी मिलेगा आपको इक्विटी में भी, तो भी यू शुड बी हैप्पी। साइकोलॉजी